everyone and welcome back to SK1 के Sanva back again with another video of mine and आज हम लोग again another quantum problem की discussion करेंगे and this is the centered infinite square well जिस particular situation में one thing that particularly spikes our interest or anyone that is actually interested in quantum mechanics is the quantum revival time in this situation. Now you look at it कि अगर आपने एक बॉक्स में किसी पार्टिकल को रखा है and it is going back and forth between the two ends of the walls, so this is also called the particle in a box situation. And classically आपको पता है कि if it is going back and forth between the two walls, it is hitting back and forth. It is something like a thermodynamic system. For instance, if you can draw an analogy, and यहाँ पे आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हीट होती है या फिर जो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का, इट हैपेंस सो क्योंकि वहां पे जो भी आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये सारे ऑल अराउंड इन रैंडम डायरेक्शंस वॉल्स को हिट करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड द स्पीड विथ विच दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ रैंडम मोशन इज कोरिलेटेड विद द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. नाउ आपको पता है कि यहाँ पे एक बॉक्स में ये सारा मोशन हो रहा है. अगर आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दिस होता है या फिर एक सिंगल पार्टिकल एंड यू वांट टू ट्रीट दिस थिंग बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, सो एक सिंगल बॉक्स में आपको पता है यहाँ पे इट विल बी हिटिंग बैक एंड फोर्थ एंड रेस्ट्रिक्टिंग दिस टू वन डायमेंशन. How would we analyze the situation? Well, we can assign to this a particular kind of revival time. And what is that revival time? This is the time कि जिस टाइम के बाद ये पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजिशन एंड अपनी ओरिजिनल मोमेंटम वापस ले लेगा. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है एंड मूविंग इन this direction with some particular speed and it goes there and hits the wall, and when it hits that wall it comes back and it passes through the same point, it hits this wall, and when it hits this wall it returns back, it reflects back or bounces back and it comes back to the same position and moves with the same velocity, this direction and same speed, provided that the collisions are elastic of course. And हमें पता है कि जब ये after this certain amount of time, आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये पार्टिकल इस पोजीशन पे वापस आता है, देन यू नो कि इसका मोमेंटम अब उसी डायरेक्शन में, उसकी पोजीशन वही है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल द क्लासिकल रिवाइवल टाइम. इन दिस केस दैट इज व्हाट क्लासिकल रिवाइवल टाइम इज, द टाइम दैट द पार्टिकल विल टेक टू गेन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड मोमेंटम बैक. इसी चीज को क्वांटम मैकेनिक्स में अगर एनालाइज किया जाए, सो यू नो दैट व्हेन यू हैव दिस giant box or maybe just a very little box जिसमें आपने इस वेव पैकेट को confine करके रखा है, since the particle is a kind of wave packet or at least behaving like a wave packet unless you are waving it and you are collapsing the wave function, so to call it in the Copenhagen interpretation, तब आपको पता है कि as a wave packet behave कर रहा है, तब हम लोग इसके position and momentum की बात नहीं कर सकते because it has all these values of position and momentum spread across this entire region of the box. हम लोग बात किस चीज की कर सकते हैं, is the quantity that stores the values of position and momentum or the superposition of position and momentum, and that is the wave function of course. तो इसी चीज को quantum mechanics में as of wave function देखा जाता है कि कितने टाइम बाद ये चीज खुद को रिपीट करेगी, and that is the quantum revival time. Looking at it कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग ऑफन रिवाइवल टाइम इन पोजीशन एंड मोमेंटम के टर्म्स में बात करते हैं. क्वांटम रिवाइवल टाइम ऑन द अदर हैंड इज द टाइम टी जितने टाइम के बाद आपकी जो वेव फंक्शन है ये वही ओरिजिनल वैल्यू अज्यूम कर लेगी. सो इफ यू हैव एट टी इक्वल 0 वॉट एवर द वेव फंक्शन बी, तो उसकी वैल्यू at t equals capital T, if capital T is the quantum revival time, k ही equal होगी, and that is how you define the quantum revival time of course. Now the thing is, हम लोगों ने एक particle in a box situation लिया है. So pretty interesting situation. What is this? अगर इसे in the form of a potential well draw किया जाए, well it is something like this कि मेरे पास एक box है. And by this I don't mean a literal box. When I say a particle in a box situation, so it is often referred to as a particle in a box situation. But the very thing that here is कि ये actual में एक potential well है या फिर एक potential field maybe you want to call it,
एक ऐसी सिचुएशन है जिससे पार्टिकल इन अ बॉक्स रेफर किया जा सकता है. So it is not essentially you have a box, you place an electron or whatever kind of elementary or whatever kind of quantum particle. बस आपने इन potential की values को कुछ ऐसे maintain किया, कुछ ऐसे specify किया. So that is a particle in a box situation. And here if I choose this axis to be showing me the coordinate of this and मैं एक single dimension situation ही ले रहा हूँ, then I choose this axis to represent for me the potential energy at all these specific values of this one dimensional coordinate. Now अब अगर मैंने यहाँ पे सोचा कि ये मेरा हो गया माइनस ए एंड दिस इज माई पॉजिटिव ए, दिस ओरिजिन ऑफ कोर्स, तो माइनस एंड प्लस ए पे सडनली पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया एंड जीरो पे एंड ऑल अदर वैल्यूज यू माइट से बिटवीन माइनस एंड प्लस ए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. नाउ दिस इज द पार्टिकल इन अ बॉक्स सिचुएशन. यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम पार्टिकल है इट विल बी स्प्रेड एज अ वेव पैकेट इन ऑल दिस रीजन. इनफैक्ट यहाँ पे एक वेव पैकेट आई एम सेइंग, लेकिन इट हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड एट एनी ऑफ दीज पोजीशंस. यू फाइंड एट एनी ऑफ दीज पोजीशंस बिटवीन माइनस एंड पॉजिटिव ए. ऑफ कोर्स हम लोग प्रोबेबिलिटीज डिटरमिन कर सकते हैं कि कहाँ पे इट इज मोर लाइकली टू बी फाउंड एंड कहाँ पे इट इज लेस लाइकली टू बी फाउंड. नाउ द थिंग इज कि अगर मुझे इसका वेव फंक्शन जानना होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फाइंड दिस पोटेंशियल एनर्जी. आई कैन राइट दिस एज जीरो बिटवीन माइनस एंड प्लस ए एंड इनफाइनाइट अदरवाइज. सिंस आई नो हियर कि अगर सडनली माइनस एंड प्लस ए पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है एंड इट अक्रॉस ऑल दिस रीजन ऑफ स्पेस ये इनफाइनाइट ही है, I have zero probability of finding the particle there. And why is it so? क्या ये पार्टिकल क्वांटम टनलिंग करके दूसरी साइड पे जा सकता है? It should be able to go there. Well, it's like no, it cannot. क्वांटम टनलिंग भी इस पार्टिकल को अलाउ नहीं करती है टू गो बियॉन्ड माइनस ए और बियॉन्ड प्लस ए इन द नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट सो? तो क्वांटम टनलिंग आपकी अराइज करती है जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपके पास बहुत ही हाई पोटेंशियल या फिर लो पोटेंशियल व्हाट एवर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो पार्टिकल के पास या वेव पैकेट के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि क्लासिकली ये उसके थ्रू जा पाए. बट इन क्वांटम मैकेनिक्स यू नो if it is even the potential energy to be at that position is greater than the energy of the particle at that particular point in time or space, तो भी हमें पता है ये पार्टिकल दूसरी साइड पे चला जाता है थ्रू क्वांटम टनलिंग. बट दिस हैपेंस व्हेन दिस इज लोकलाइज्ड एट अ पॉइंट और मे बी जस्ट इन अ फाइनाइट रीजन. लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट रीजन में इस पूरे पॉइंट पे देयर इज इनफाइनाइट यू सी पोटेंशियल, यहाँ पे पूरे इनफाइनाइट पोटेंशियल है. सो देयर इज नो क्वांटम टनलिंग ऑकरिंग हियर. इट हैज ओनली द प्रोबेबिलिटी टू बी इन दिस पोजिशन और इन दिस रीजन ऑफ स्पेस टू बी मोर एक्यूरेट. तब मुझे पता है कि साई एक्स मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं. आई कैन रिप्रेजेंट दिस साई एक्स एज यहाँ पे एक ए साइन के एक्स हो गया प्लस बी कॉस के एक्स. दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन विद सम यू सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी एंड दैट इज दिस वेव नंबर के एंड दिस इज फॉर द रीजन माइनस एंड प्लस ए. सो बिटवीन माइनस एंड प्लस ए and zero otherwise, क्योंकि it has no probability of being found at any other position. And this is my psi x, but what I'm even more interested in is this actual wave function, because this isn't even my wave function, this is the spatial part of it that you might want to call the probability amplitude. अब ये मेरा अगर मुझे वेव फंक्शन चाहिए, so how do I find this out? I find this out using this probability amplitude. How do I do that? कि किसी टाइम इंस्टेंट t पे I have sigma n equals 1 to infinity some constant cn multiplied by this psi n x exponential of minus iota e n t over h bar, right? And I want a revival time which is what? Which is the time कि अगर ये जीरो पे मैंने देखा एंड कैपिटल t पे देखा तो पार्टिकल के पास सेम वेव फंक्शन होना चाहिए. एंड दैट क्लियरली टेल्स मी कि सिग्मा फ्रॉम n equals 1 to infinity cn psi n x exponential of what? 0, so that is 1 should equal sigma n equals 1 to infinity
Cn sin x exponential of minus En capital T over h bar. And you see right here कि हमें इस दोनों समीशंस की वैल्यू इक्वल मिलती है when you sum it from n equals 1 to infinity. And when you do that तो आपको पता चलता है कि अगर इक्वल वैल्यूज मिल रही हैं that must mean कि एक एक इंडिविजुअल टर्म इक्वल होना चाहिए. Well, that tells you कि आपका Cn sin x should equal Cn sin x exponential of this term. So this basically tells you that cancel out the Cn sin x terms on both sides and exponential of this should be 1. क्योंकि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू n ली एंड उसके लिए ये दोनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए, तभी तो समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इक्वल होगा. सो इन दैट केस यू राइट इट्स एक्सपोनेंशियल एज 0, sorry, the exponential as 1, and now I use De Moivre's theorem to write that the cosine of En capital T over h bar should equal what? यहाँ पे रियल टर्म होना चाहिए. What is the real term right here? This is 1, and यहाँ पे the sine of UC exponent of En capital T over h bar, the imaginary term, that is 0. So I broke down this equation using De Moivre's theorem, and what is that? It's the exponential of iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta. So the exponential of an imaginary term can be represented as the sum of a real term and that of an imaginary term. तो यहाँ पे मैंने देखा रियल पार्ट ऑफ दिस क्या है, 1 है, so cos of this should be 1. इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, so it is a purely real number. तो sin of this term should be 0 because iota is associated, it is in product with sin itself. इस इक्वेशन को if you look at it, तब मुझे पता है कि अगर sin of this term 0 है तब En capital T over h bar किसके इक्वल होना चाहिए? The sine function repeats itself after every 2 pi radians, you know that. And अगर ये खुद को every 2 pi radians के बाद repeat करता है, then I can clearly write कि ये term should be equal to 2 pi plus something, 2 pi n something, right? 2 pi n मैं इसे लिख सकता हूँ. Well, अगर मैं इस चीज को 2 pi n लिखने की कोशिश करूं, so I can clearly know यहाँ से मुझे रिवाइवल टाइम मिल सकता है. But one thing that we can see over here कि En मेरा क्या है? It is n square pi square h bar square over 2m a square, right? अब यहाँ पे इस केस में देखें, so it is 2m 2a square, 2m 2a square. ये क्या है? This is my eigen value in this particular thing, energy eigen value. तो यहाँ पे अगर मैंने nth स्टेशनरी स्टेट की बात की, सो मेरी एनर्जी कितनी होगी ऑफ द पार्टिकल? इट विल बी n square pi square in this entire term. So I can clearly write over here कि n square pi square h bar square and you have over 2m 2a square टाइम्स में आपके पास यहाँ पे एक h bar है, यहाँ पे एक कैपिटल T है, इक्वल्स 2 pi n मिल गया. एंड वन थिंग दैट यू कैन क्लियरली सी, एक चीज की हमारी जो एनर्जी, हमारी साइन फंक्शन है, दिस एक्चुअली बिकम 0 आफ्टर एवरी पाई, राइट? आफ्टर एवरी पाई रेडियन, बिकॉज यू सी साइन ऑफ n pi is 0, साइन ऑफ n pi is always 0. तब यहाँ पे इस केस में अब मैं बता सकता हूँ कि इफ यू वांट यू कैन कैंसिल दिस एंड दिस एंड. हाउ डू यू एक्चुअली कैंसिल दिस एंड दिस एंड? क्योंकि ये डिफरेंट एंड्स हो सकते हैं. हाउ डू यू एग्जैक्टली नो कि आपके पास ये चीज अगर 1 है तो ये चीज भी 1 है? सो जस्ट इमेजिन इट टू बी सो. यू कैन यूज योर इंट्यूशन इन दिस मैनर व्हाटसोएवर. सो यहाँ पे अगर आपने मे बी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की बात की, एंड वी आर पर्टिकुलरली डीलिंग विद स्टेशनरी स्टेट्स नाउ. हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स के साथ क्यों डीलिंग करेंगे? बिकॉज यू बेसिकली हैव ओवर हियर, ये क्या है? दिस इज एन आइगन वैल्यू, यू सी, दिस इज एन आइगन स्टेट, and they basically refer to stationary states solutions of the Schrodinger equations themselves, and in terms of those stationary states you represent the overall wave function. तो आपके पास फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, एंड इन दैट ओनली यू सी जैसे ये नंबर इंक्रीज होते हैं, इफ यू ट्राई टू सम इट अप फ्रॉम 1 to infinity, ये नंबर भी वैसे ही इंक्रीज होता है. सो यू माइट थिंक कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सो कैंसिल इट दैट वे, बट दैट माइट नॉट बी मैथमेटिकली ट्रू. It might not be mathematically true. My intuition tells me so, and this actually gives us the desired result. तब मैंने ये तो कैंसिल कर दिया, एक n अभी भी यहाँ पे बचा है,
व्हाट डू वी डू इन दैट केस? वेल, पहले इस h बार को इस h बार से कैंसिल करो एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैंने 2 हटाना भूल गया, आई फॉरगॉट टू रिमूव द 2 ओवर हियर, यहाँ पे मैंने पाई n लिखा है, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग एज 1. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने इसे 1 क्यों लिया? आई टुक इट 1 क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि ये पार्टिकल कितने टाइम बाद फिर से अपना वही इनिशियल वेव फंक्शन एस्यूम करता है. नाउ द थिंग इज कि ये पार्टिकल के पास जो इनिशियल वेव फंक्शन है विच इट हैड एट मे बी टाइम t इक्वल 0, कैपिटल T टाइम के बाद उसका सपोजिटली वही वेव फंक्शन होता है एंड मे बी आफ्टर अनदर सेम अमाउंट ऑफ टाइम मे बी इसके पास वही वेव फंक्शन फिर से मिलता है, क्योंकि यू सी द वेव फंक्शन might not be actually that much of stationary if you think of it in terms of time, क्योंकि वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा. So you see वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करे, so the probability of find it at any point in this given region of space varies with time. लेकिन of course it is not assuming that initial value for once, but it will continue to do so. and हमें वो पहला टाइम निकालना जब ये अपनी इनिशियल वैल्यू फिर से assume करेगा. The first time it does so. So for the first time you have this as 1. How can you say that this is exactly the number of times you want to calculate the wave function is in assuming its initial value? Well, you can tell it so कि हम लोगों ने इन दोनों को तो इक्वल माना ही है. यहाँ पे ये n क्या था? This n was telling us कि after how many radians you are, after how many pi radians you are having the sine function again as 0. एंड साइन फंक्शन 0 है क्योंकि जब साइन फंक्शन 0 है तभी एक्सपोनेंशियल हमारा किसके इक्वल आ रहे हैं? 1 के इक्वल आ रहे हैं. एंड जब ये एक्सपोनेंशियल 1 के इक्वल आ रहे हैं तभी हमारा वेव फंक्शन अपनी इनिशियल वैल्यू अस्यूम कर रहा है. सो गोइंग बाय दिस एंड कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स यू फाइंड आउट कि ये जो हमारी n है यहाँ पे, दिस इसकी वैल्यू ही आपको बता रही है कि हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ इट आर यू कंसिडरिंग, जो कि आप हम लोग अपना रिवाइवल टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं. सो यू टेक दिस एज 1 कि पहले सबसे पहले हम लोग कौन से कितने टाइम बाद वेव फंक्शन विल अस्यूम इट्स इनिशियल वैल्यू. यू हैव दिस थिंग एज 2m टाइम्स में 2a का स्क्वायर टाइम्स 2a का होल स्क्वायर एंड ओवर में पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली द फाइनल रिजल्ट दैट यू गेट राइट हियर फॉर दिस सेंटर्ड इन्फिनिट स्क्वायर वेव. यही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है. अब यहाँ पे इफ यू वांट टू यू कैन ऑफ कोर्स स्क्वायर इट एंड राइट इट आउट, एंड व्हेन यू स्क्वायर एंड राइट इट आउट you will have this thing as 8 right here and you'll have 8ma square over में pi square h bar square. अगर यही चीज मैंने देखा होता कि मेरे पास इंस्टेड एक सेंटर्ड इन्फिनिट स्क्वायर वेल नहीं होती, बट दिस इन्फिनिट स्क्वायर वेल वाज लाइंग बिटवीन 0 and a instead. So this is the time period for what? Negative and positive a, right? यहाँ पे I should make square brackets actually, क्योंकि when I make these brackets then I can actually tell you कि यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं it includes the point minus and plus as well. Then the time period I can write as 4ma square over, यहाँ से पाई हम लोग कैंसिल करना भूल गए, पाई कैंसिल करना भूल गए एंड यू सी कि h बार को भी हम लोगों ने कैंसिल किया था. सो देयर आर सम राइटिंग एरर्स हियर, पाई h बार. ओके, तो यहाँ पे पाई h बार, दिस विल बी द रिवाइवल टाइम पीरियड अगर यही आप कंसिडर करते हो बिटवीन 0 एंड पॉजिटिव. इफ द इन्फिनिट स्क्वायर वेल instead was located only between 0 and positive a, this would be the revival time period that you would actually consider. लेकिन it is here right here a centered infinite square well, then you say that it is between minus and plus a, तब it is twice the value of the revival time as it would be if it were only of half the width between 0 and a. So what that tells us is कि आपने अपनी infinite square well की width डबल किया and what you are finding suddenly is कि इस यहाँ पे ये जो रिवाइवल टाइम है वो भी डबल हो गया. सो वन वेरी नाइस थिंग दैट वी कैन फाइंड, दिस इज वेरी मच वर्किंग लाइक, नॉट इन फैक्ट वेरी मच बट अ लिटिल बिट लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स. अगर आप इसे एज अ वेव पैकेट मानते हो तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी आर लुकिंग एट द पोजीशंस एंड मोमेंटम, एंड वहां पे हमें पता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम की रिवाइवल टाइम में कि सिंस
there is zero potential that has been assumed in this region of space, so there will be no acceleration in velocity. तो velocity and momentum की अगर आप यहाँ पे speed बात करो, in fact if you actually talk about speed instead of velocity, क्योंकि velocity तो as it is striking at the walls and elastic collision की वजह से the velocity is changing its direction of course, but speed हमारा roughly constant रहता है. It is elastic collision, so of course constant रहता है एंड स्पीड कांस्टेंट रहता है. एंड तब उसमें अगर आपने अपनी विड्थ को डबल कर दिया, सिंस वो अभी भी उसी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, तब इसे डबल टाइम लगेगा टू एक्चुअली ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एंड टू कम बैक टू इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम. एंड यहाँ पे भी अगर आप स्पीड की बात करो, स्पीड ऑफ द वेब पैकेट इफ इट इज हिटिंग बिटवीन द टू, मान लो आपके पास ये वेब पैकेट है एंड इलेक्ट्रॉन वेब पैकेट एंड ये बिटवीन द टू हिट कर रहा है. इनफैक्ट मे भी ऐसा रियली में कर नहीं रहा है, बट यू कैन क्लियरली सी राइट हियर कि हम लोग वेव फंक्शन की बात करें दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम और एटलीस्ट दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज दैट यू कैन पॉसिबली फाइंड. एंड आपने यहाँ पे भी विड्थ डब्ल्यू किया एंड यहाँ पे रिवाइवल टाइम, दैट इज द टाइम नीडेड फॉर द वेव फंक्शन टू कम बैक टू इट्स वट एवर वैल्यू, कि जितने टाइम बाद अगर आप कंपेयर करो एंड अभी का कंपेयर करो इट विल कम बैक टू द सेम वैल्यू. तो विड्थ डबल करने के बाद ये टाइम रिवाइवल टाइम भी डबल हो गया. सो दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट्स कनेक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन फाइंड दैट मे बी इट इज आफ्टर ऑल एन इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट जो कि दोनों वॉल्स के बीच हिट कर रहा है एंड सिंस देयर पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन द टू वॉल्स, बिटवीन इनसाइड द टू वॉल्स इनसाइड द बॉक्स, तो मे बी दैट इज द रीजन कि क्वांटम रिवाइवल टाइम डबल हो गया. But that of course doesn't explain it in terms of position momentum or something, but still that kind of makes sense and this one can draw an analogy with classical mechanics. तो classical mechanics आपको ये रिजल्ट नहीं देता है, बट क्लासिकल ये तो आपका क्वांटम रिजल्ट है, ये आपका क्वांटम रिजल्ट है, लेकिन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों जैसे इन प्रपोर्शन टू द विड्थ होते हैं, वैसे हमें यहाँ पे भी समथिंग लाइक दैट मिल रहा है. So that is basically all for today's video of mine, and I guess that is how I have shown you what the quantum revival time for the centered infinite square well is. यही चीज मैंने infinite square well अगर 0 से a के बीच में you can still carry out the very same things and आपको मिलेगा कि यहाँ पे इसका इसकी half value होती है. Well, that was all for today's video of mine and thanks to all viewers.